ہر رات کی طرح آج بھی نماز کے بعد جیسے ہی دعا کرنے بیٹھی تو آنسو اس کی آنکھوں سے لڑیوں کی طرح بہنے لگے۔ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ رات کے پچھلے پہر اپنے گلے شکوے، اپنا دکھ درد صرف اللہ سے بیان کرتی تھی، کیونکہ اب صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کے دکھ کا مداوع کر سکتے تھے۔ 4 سال پہلے اس کی زندگی میں ایک سیاہ رات آئی تھی جس نے اس کی ہستی بستی دنیا اجاڑ دی۔ وہ چاہ کر بھی اس بھیانک رات کا اثر اپنی اور شخصیت سے ختم نہیں کر پائی تھی۔ وہ رات اس کی زندگی پہ ایسی چھاپ چھوڑ گئی تھی کہ اب شاید اجالا اس کا مقدر نہیں تھا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی اور اس کا پورا جسم جھٹکوں کی زد میں تھا۔ لوگ تو چلے کسی کمزور لمحہ ڈھونڈ کر ٹارگٹ کرنا اپنا پسندیدہ مشغلہ سمجھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ وہ بے قصور تھی، بے گناہ تھی۔ اس کا روز اللہ سے ایک ہی شکوہ ہوتا تھا: آپ نے تو دل کے حال سے واقف ہیں، آپ تو جانتے ہیں اس خوفناک اور بھیانک رات کی حقیقت، آپ تو واقف ہیں میری پارسائی اور پاکیزگی سے، پھر بھی میں اتنی بے بس کیوں ہوں؟ میں اپنی پاکیزگی ثابت کیوں نہیں کر پا رہی؟ الہی میں لوگوں کی نظروں میں مشکوک کیوں ہوں؟ مجھ پہ رحم کریں، میں بھوکی رہ سکتی ہوں مگر میں کردار پہ داغ برداشت نہیں کر سکتی، میں تہمت زدہ اور ضلالت بھری زندگی نہیں جی سکتی۔ الہی مجھے صبر عطا کر، میں جانتی ہوں وقت آنے پر آپ میرے صبر کا صلہ دیں گے، مگر اے پروردگار میں تھکنے لگی ہوں، میرا حوصلہ ٹوٹنے لگا ہے۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے زور و قطار رو رہی تھی۔ آنسو کسی آبشار کی طرح بہہ رہے تھے، مگر یہ رونا تو اس کا روز کا معمول تھا۔ یہ ہر رات کا دکھ وہ پچھلے 4 سال سے سہ رہی تھی، مگر اس نے حوصلہ نہیں ہارا تھا، اس نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا تھا۔ کسی ضدی بچے کی طرح روز اللہ کے ہاتھ دستک دیتی تھی۔ اسے امید تو تھی کہ ایک دن اللہ اس کی دستک پر ضرور اس کی پکار سنے گا۔ اسے انسان کی محبت نے تباہ و برباد کیا تھا، مگر اللہ سے محبت اسے آباد کرے گا۔ وہ جانتی تھی کہ محبت کے معاملے میں ناکام ٹھہری ہے، وہ محبت کے نام پر نقصان اٹھا چکی ہے، اس لیے تو ہر رات اللہ سے اس رات کی سیاہی دھلنے کی بھیک مانگتی تھی۔ اسے انتظار تھا وہ اللہ سے محبت میں کب سرخ رو ہوتی، کیونکہ اللہ کے بندے سے محبت نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ بہت بدقسمت تھی، ہاں سرینا افتخار محبت کے معاملے میں بہت بدقسمت تھی۔ وہ ہر رات کی طرح روتے روتے اس کی کارپیٹ پہ سو گئی۔ اماں ناشتہ بنا چکی تھی، کب سے سرینا کو آواز لگا رہی تھی مگر بے سود۔ سرینا تو گھوڑے بیچ کر سوئی ہوئی تھی، مجال جو اتنی آوازوں سے اس کے کان پر جو تک رہی تھی۔ اماں سرینا کو لے کر بہت پریشان تھی، اس لڑکی نے اپنی زندگی کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں گھلی تلخی کو فراموش کر نئی زندگی کی شروعات کرے، مگر نہیں، سرینا کو تو جیسے زندگی ہی رک گئی تھی۔ وہ 4 سال سے گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلی تھی، اس نے باہر کی دنیا سے جیسے بائیکاٹ کر دیا تھا، اور اماں اندر ہی اندر کرتی رہتی تھی جیسے ان کے جسم کو دھیما ختم کر رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی ویران زندگی کو لے کر انتہائی دکھی تھی، مگر بے بس تھی، کیونکہ سرینا بھی آخر کیا کرتی؟ باہر نکلتی تھی تو لوگ اس کی ذات کو نشانہ بناتے تھے، اس کی پاکیزگی پہ کیچڑ اچھالتے تھے۔ وہ باہر نکلتی تو لوگ اس کو کہاں جینے دیتے تھے، اس لیے اس نے باہر جانا ہی ترک کر دیا تھا، اور یہ بات اماں کو اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی۔ وہ ناشتہ بنا کر اسے اٹھانے گئی، کیونکہ آج اس کی دوست آنے والی تھی۔ وہ شہر کی مایہ ناز بیوٹیشن تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ سرینا اس کے پارلر میں کام کرے، کیونکہ وہ سرینا کو مزید خود کو برباد ہوتے نہیں دے سکتی تھی، اور سرینا کے انکار کی وجہ سے وہ اسے خود لینے آ رہی تھی۔ سرینا اٹھ جا میری جان، نایاب بس آتی ہوگی، دیکھ وہ خود تجھے لینے آ رہی ہے، اس طرح نہ کر میری بچی۔ سرینا کمفرٹ کی اوٹ سے ہلکی سی کچمچائی اور غنودگی میں بولی: اماں میں نے جب اسے منع کیا تھا تو وہ کیوں آ رہی ہے، اور میں جانتی ہوں یہ سب آپ کی شے کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ اس کا کیا کام کہ وہ 1 گھنٹہ آپ سے فون پر بات کرے۔ آنے دیں اسے، میری طرف سے انکار ہے، میں بالکل اس کے پارلر میں کام نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی، تو نے پچھلے 4 سال سے اپنی اماں کی اور کون سی بات مانی ہے؟ پچھلے 4 سال سے میں تجھے اس حالت میں دیکھ کر جیتے جی مر رہی ہوں، مگر تجھے کیا پرواہ؟ تو یہی چاہتی کہ کب تیری اماں سے جان چھٹے۔ اماں کی آواز میں انتہائی کڑپ تھا، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ سرینا کو مجبوراً اٹھ کر ان کے آنسو صاف کرنا پڑے۔ اماں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ جانتی بھی ہیں میرا آپ کے سوا اس دنیا میں اور کون ہے؟ آپ چاہتی ہیں نا کہ میں پھر سے باہر کی بے حس دنیا میں قدم رکھوں، تو میں آپ کی خواہش بھی پوری کر دوں گی۔ میں آپ کی محبت اور فکر کا احترام کرتی ہوں اماں، مگر اماں آپ نہیں جانتی لوگ مجھے کیسی چانچتی نظروں سے دیکھیں گے۔ میں کس کس کی نظر کا جواب دوں گی اماں؟ میں نہیں کر سکتی کسی کا سامنا، پلیز۔
सरीना मेरी बच्ची, एक माँ से ज़्यादा कोई अपनी माँ को औलाद को नहीं जानता, और मैं जानती हूँ मेरी बेटी मर सकती है मगर किसी गैर महरम के घर की दहलीज पार नहीं कर सकती। कोई माने ना माने, मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तुम बेफ़िक्र होकर सर उठाकर बाहर निकलना। ज़माना क्या कहता है मुझे इसकी परवाह नहीं, बस मेरी बेटी सर उठाकर जिए यही मेरी चाहत है। वो सरीना को गले लगाकर उसके माथे पर लप रखते बोली। तो सरीना की हिचकी बन गई, क्योंकि इसकी माँ का इस पर अंधा एतमाद इसे जीने की वजह देता था। सारी दुनिया की तलखी इसकी माँ की ममता के आगे भय फीकी थी। इसकी माँ का दिया गया मान ही था, वो आज वो नायाब के साथ जाने का इरादा बांध चुकी थी। ये अलग बात है कि वो इजहार नहीं कर रही थी, मगर सरीना ने सोच लिया कि वो अब मजीद अपनी माँ का दिल नहीं दुखाएगी। वो ना चाहते हुए बाहर की दुनिया में कदम रखेगी। सरीना बार-बार सारे लज़्ज़ात चेक कर रही थी, क्योंकि आज वो बहुत अरसे बाद नायाब से मिलने वाली थी, और उसकी दोस्त वाक़ई अपने नाम की तरह नायाब थी। पिछले 3 साल से इसने किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखा था, मगर वो फिर भी शाइस्ता बेगम, सरीना बेगम से मुसलसल राब्ते में थी और उसकी खैरियत मालूम करती रहती थी। सरीना के नज़रअंदाज करने के बावजूद वो उसकी ज़ात के हर पहलू से बाखबर थी। मजबूरन सरीना को उसके खुलूस के सामने शिकस्त माननी पड़ी, और सरीना अब इससे कभी-कभार फ़ोन पे बात कर लेती थी, मगर अपने आप ने कसम उठा रखी थी कि वो इसे इसके खौल से बाहर निकाल कर रहेगी। सरीना के मना करने के बावजूद आज वो अपनी ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुंचाने वाली थी। इसे पॉलर के लिए लड़कियों की कमी कोई नहीं थी, मगर वो सरीना को बदलना चाहती थी, इसे घर के चार दीवारी से बाहर निकालना चाहती थी, और आज वो इसे खुद पिक करने आ रही थी। अम्मा, इस चुड़ैल को आपके हाथ के पराठे बहुत पसंद है, देखिए कहीं ठंडे ना हो जाएं। और अम्मा, इसे जलेबी भी बहुत पसंद है। अम्मा, जूस रेडी है ना? अरे यार, चाय के लिए तो दूध ही चढ़ा देती। वो कब से एक्साइटमेंट में इधर उधर फिर रही थी। अरे बावली हो गई है क्या? अब सब कुछ मैंने बना तो दिया है, तू फिक्र ना कर, सब कुछ रेडी है। और उसे खाली देसी दूध की चाय पसंद है, तो जब वो आएगी तो 1 मिनट में बच जाएगी। शाबाश मेरी बच्ची, तू आराम से बैठ जा, बल्कि जा जाके थोड़ा हुलिया दुरुस्त कर ले, वो बस आती होगी। जी अम्मा, बस मैं अभी कपड़े बदल कर आई। नायब की गाड़ी जैसी सरीना के गेट के सामने आकर रुकी, सब मोहल्ले वाले अजीब नज़रों से इसे घूरने लगे, क्योंकि 4 साल से सिवाय मोहल्ले की चंद औरतों के इस घर में किसी को जाते हुए नहीं देखा था। नायाब इनकी घूरियों से हैरान थे कि क्या वो कोई अजूबा थी जो इसे सब इतनी हैरानगी से देख रहे थे। खैर, वो सबकी घुरियों को नज़रअंदाज करती सीधा सरीना के घर के मेन गेट से अंदर दाखिल हुई, क्योंकि ये गेट सरीना के ताया और इनका था, क्योंकि गाड़ी पार्किंग के लिए काफ़ी कशादा जगह थी, और घर का गेट और फूलों का बागीचा दोनों का मुश्तरका था। इनकी रायदी से होकर फिर दोनों के घर अलग हो जाते थे। वो सीधा अंदर दाखिल हुई। घर के चौकीदार ने एकदम गेट ओपन किया और उसने ड्राइवर को गाड़ी अंदर पार्क करने का इशारा किया। नयाब ने इधर-उधर नहीं देखा, मगर इसे हैरान और परेशान नज़रें अपने पुष्प पर महसूस हुईं। वो नज़रअंदाज करती नयाब के घर के दाखिल दरवाजे की घंटी बजा चुकी थी। मम्मा जान, इधर आइए, आप कह रही थी ना कि सरीना दुनिया से कट के रह गई है, इसे अब दुनिया की होश नहीं। वो देखें, इसकी लाडली नायाब खड़ी है। वो सेकंड फ्लोर पे खड़ी खिड़की में पर्दे की ओर से इसके देखकर बोल रही थी। अरे मैं तो पहले ही बोली थी, सारे बहाने, इसके सबसे राब्ते में ऐसे फितना कर रही थी कि माँ के सामने, वरना ये यहाँ क्या कर रही होती। नादिया बेगम, सरीना की ताई और मारविश की माँ भी मुँह के बड़े टेढ़े मेढ़े ज़ाविये बनाती बोलती नायाब पर नजरें गाड़े पर्दे की ओट में आ खड़ी हुई। दफ़ा करें अम्मा जान, ये लड़की मुझे इंतहाई ज़हर लगती थी यूनिवर्सिटी में भी। मैं इनको कभी माफ़ नहीं करूँगी। इन दोनों ने मेरे भाई को मिलकर धोखा दिया, ये भी शामिल थी इस रात सरीना के प्लान में। इन लोगों ने मेरे भाई के जज्बात को ठेस पहुँचाई। मैं इन लोगों की भी शक्ल देखना नहीं चाहती। ऐसी दुखी शक्ल बनाते हुए बोली जैसे वो भाई के दुख में हलकान हो रही थी। अरे अरे मेरा बच्चा, तू भी इस भाई के पीछे रो रही है जो सरीना के नाम के कलमे पढ़ता है, जिसकी नज़र हम तम ख्याल और तंग नज़र है, वो बेकसूर है। अरे जादूगरनी है वो, इसका काम ही लड़के ट्रैप करना है। चल दफ़ा कर, वो चुड़ैल भी अंदर जा चुकी है। तू अपना और मेरा खून क्यों जलाती है इस मनहूस का नाम लेकर। चल शाबाश मेरा बच्चा, नीचे चलकर भाभी कब से नाश्ते पे बुला रही हैं। मारविश भी इस पे दौर से लानत भेजते हुए पर्दा ठीक करती अपनी माँ के पीछे चल दी पड़ी। नायाब ने घंटी पे हाथ रखा तो इसे फिर जैसे उठाना ही भूल गई। अरे आ रही हूँ, सबर का दामन थामे रखिए, कौन बेसब्रा है। सरीना की अम्मा की आवाज़ इसकी कानों में पड़ी तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। जैसे ही अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो वो एकदम इनके गले लग गई और ज़ोर से चिपटी डाली। आंटी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। आप जानती हैं ना, सरीना मेरे दिल के कितने करीब है। मैं इसकी लाताल्लुकी चाह कर भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। आज फाइनली 4 साल बाद मैं इसकी शक्ल देखूंगी।
नायाब की आंखों में आंसू चमक रहे थे, जो इस बात की गवाही थे कि आज इतने सालों के बाद इसकी मोहब्बत, इसकी दोस्ती वाला खुलूस सरीना के लिए कम नहीं हुआ। अरे नहीं मेरी बेटी, तुम्हारे नाम से तो उसके चेहरे पर मुस्कान आती है। वो उसके माथे को चूमती हुई बोली, अरे क्या राजो न्याज की बातें हो रही हैं, वो भी मुझसे छुप कर। पीछे से सरीना की आवाज़ आई। नायाब एकदम भागने वाले अंदाज में उसके गले लग गई। वो एक सख्त किस्म की झपकी ली। सरीना भी अपने जज्बात पे काबू न रख सकी और रोने लगी। दोस्ती एक लाजवाब रिश्ता है। दोस्ती ज़िंदगी का दूसरा नाम है। एक अच्छा दोस्त होना दुनिया भर की हर दौलत से अहम है, मगर वो दोस्ती नायाब गिलानी और सरीना इफ्तिखार जैसी हो तो तब वो दोनों गले लगी थी, क्योंकि आखिरी बार बिछड़ने से पहले वो लोग मिल नहीं पाई थी। नाबो, मुझे बता, क्या तुझे भी लगता है कि मैं बदकिरदार हूँ? क्या तो तू भी मुझे गलत समझती है नाबो? नाबो, मैंने कुछ नहीं किया। नाबो, तू तू यकीन करती ना मेरा? वो उसके चेहरे को हाथ में लिए रोते हुए बोली। सरीना ने 4 साल पहले अपनी सफाई किसी के सामने पेश नहीं की थी। इसने कभी किसी से इस तरह सवाल नहीं किया था, मगर आज वो खुद पर काबू ना रख सकी। सरीना मेरी जान, तू कैसी बातें कर रही है? हाँ, तो तुमने सोच भी कैसे लिया मैं ऐसी किसी मनगढ़ंत कहानी पर एतबार कर लूँगी? मेरी जान, मुझे तुम पे इतना भरोसा है, शायद मुझे अपने आप पर भी नहीं। मैं किसी ऐरे खैरे की बकवास पे कान नहीं धरती। मैं जानती हूँ मेरी दोस्त ऐसा कुछ नहीं कर सकती, जैसे जैसे इस पर इल्ज़ाम लगाया गया है। जिससे भी तेरे साथ गेम खेली है, जिसने भी तेरी ज़िंदगी के 4 साल ज़ाय किए हैं, मैं इसे जान से मार दूँगी अगर मेरे हत्थे चढ़ जाए। वो शोभदाबाज़ क्या हालत बना रखी है मेरी वो दोस्त, जिसकी खूबसूरती है पाक दामनी की मिसालें दी जाती थी, इसे मिट्टी में मिला दिया। बोलते बोलते दुख की शिद्दत से नायाब का गला रूंध किया। दुख की शिद्दत से इसे मज़ीद बोला ना जा रहा था। इसे ज़ोर से फिर सरीना को गले लगा और सरीना फूट फूट कर रोती। आज इसे बड़े अरसे बाद कोई हमराज मिला था, जिससे वो अपना दुख बयान कर सकती थी, जिससे वो अपनी तकलीफ़ की शिद्दत शेयर कर सकती थी। अम्मा कब से अंदर से आवाज़ें दे रही थी, अब बस कर दे सरीना, आंसू से नहलाने का इरादा है क्या? खबरदार, मैं तेरे आंसू के सैलाब में गरक नहीं होना चाहती। मुझे अम्मा के हाथों का नाश्ता भी करना है। नाबो, वो प्यार से बोली। जी नाबो की जान, वो भी प्यार से बोली। नाबो, आई लव यू यार, तेरे जैसा कोई नहीं हो सकता। वो इसका गाल थपथपाती बोली। मी टू मेरी लाडो, मगर मेरा पेट तेरी शहद जैसी मीठी बातों से भरने वाला नहीं। मुझे अम्मा के हाथ के पराठे खाने हैं। सरीना मुस्कुरा उठी। काफ़ी अरसे बाद सरीना मुस्कुराई थी। चल पेटू, अंदर चल, नाश्ता ठंडा हो रहा है। कब से अम्मा आवाज़ें दे रही हैं। वो दोनों अंदर की जानिब चल दी। खाने की टेबल पर खाना खाते हुए नया मुसलसल ये सोचती थी कि इसे खाने में इतनी लज्जत क्यों महसूस हो रही है। खाना इतना मज़े का है या इसमें शामिल इसकी दोस्त का प्यार इसे लजीज बना रहा है। आज इतने दिनों बाद इसने जी भर कर खाना खाया था। इसकी नज़र जब हंसते खिलखिलाती सरीना पे पड़ती तो इसकी आंखें भीग जाती। इंसान को प्यार और तवज्जो ही तो चाहिए, वरना कल तक सरीना जो मरने की दुआएं मांगती थी, मुस्कुराहट जिसकी आंखों से दूर थी, आज उससे मिलकर कितनी पुरसुकून थी। वो उसे देखकर सोच में गुम थी जब इसकी समातों से सरीना की आवाज़ टकराई। ओए होए पेटू, बस कर दे यार, कितना खाएगी? तुझे पता है 10 बज रहे। तेरा इरादा है मुझे अपने सलून लेकर जाने का, नहीं है? नया भी इसे देखकर बस मुस्कुराई जा रही थी, क्योंकि इसे मुस्कुराता देखकर इसके दिल को सुकून मिल रहा था। उठ मेरी लाडो, चल आज बहुत अरसे बाद कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। अरसा हुआ लोगों को जलाया नहीं। अरे यार, तू भूल गई, तेरा मेरा साथ सबको एक आग निभाता था। चल फिर से इसी रूटीन में बाहर निकलते हैं। सरीना की आंख से बेसाख्ता आंसू टपक पड़े। वो और वक्त था मेरी नाभो, तेरी लाडो अब पहले जैसी नहीं रही। मेरी लाडो पहले से भी मजबूत और उभर कर आएगी। अपने आंसू साफ करो। नायाब कराने की दोस्त यूं बुजदिलों की तरह आंसू नहीं बहाया करती। सरीना ना चाहते हुए मुस्कुरा दी। दोनों अम्मा को खुदाफिज कहकर बाहर की जानिब चल दी। करीना ने जैसे ही अपने कदम घर से अपनी रायदिली में कदम रखे, इसे लगा इसने कोई अनहोनी कर दी हो। इसके कदम मनोभारी हो गए थे। इसकी हिम्मत जवाब देने लगी। वो वापस पलटने ही वाली थी जब इसे अपने कंधे पर नए आपके हाथ महसूस हुए। इसकी आंखों में इल्तिजाती इतनी गुजारिश भरी निगाहें देखकर इससे पलटा ना गया। वो ना चाहते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गए। नयाब और सरीना दोनों पीछे बैठ गए और गाड़ी जैसे घर से बाहर निकली, सरीना को अपने ऊपर हैरान व परेशान निगाहें इर्द-गिर्द महसूस हुईं। इसके मोहल्ले वालों की नज़रों में क्या कुछ नहीं था इसके लिए, नफ़रत, तज़लील, तंज़, मगर इनकी गाड़ी सबको हैरान व परेशान छोड़ता आगे बढ़ गई। सरीना को नयाब ने पूरा सालों घुमाया, इसे इतना स्पेशल फ़ील कराया कि सरीना को कभी-कभी अपनी दोस्ती पे गुरूर होने लगता। सरीना एक मिडिल घराने की लड़की थी, जिसने 4 साल पहले एक हादसे की वजह से अपनी तालीम भी छोड़ दी थी, और कहाँ वो शहर की मायनात, ब्यूटिशन, खुश शक्ल और अमीर घराने की लड़की, पढ़ी-लिखी, खुश अखलाक, मगर अपने प्यारों के साथ इसके पार्लर में 20 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते थे। वो ब्यूटिशियन होने के साथ-साथ ड्रेस डिज़ाइनर भी थी। सैलून के अंदर इसकी अपनी बुटीक भी थी।
सारी वर्कर्स को जब इसने बताया कि आज इसके बाद इस सैलून में इससे ज़्यादा सरीना इफ्तिखार की चलेगी, अब इससे इस सैलून की मालकन वो है, तो इसकी मोहब्बत को देखकर इसे शर्मिंदगी ने आ घेरा। सबने इसे बहुत स्पेशल फ़ील करवाया। शाम को जब वो घर लौटने लगी तो इसका इतनी मोहब्बतें छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा था। सरीना ने खुद को 4 साल ज़ाया करने पर बहुत कोसा। काश इसे इतनी मोहब्बतें बहुत पहले समेट ली होती, काश वो खुद पर कैद मुसल्लत ना करती। मगर अभी भी वक़्त था, नायाब गिलानी की संगत इसे माज़ी से बाहर निकाल लाएगी, इसे यकीन था। सेलिना जैसे ही घर लौटी तो इसने हाइका को अपना मुंतज़िर पाया। शाम के तकरीबन 5 बजने वाले थे। इसे हैरत भी हुई कि ये कैसे आ गए? इसको मना कर रखा था इसकी ताई जान ने, इसकी मम्मा जान पर भी पाबंदी थी। आज ये कैसे मुअज़्ज़ा हो गया? ख़ैर आज मुअज़्ज़ा का दिन था, आज इसने भी तो घर से बाहर कदम रखा था। अस्सलाम वालेकुम फूफो, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, आप कहीं जाती नहीं मगर आज आप मुझे मिले ही नहीं। अरे मेरे बच्चे, मैं आ गई, अब मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? आपको पता है कल मेरा इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट है, फूफो भी घर पर नहीं है, वो अपनी दोस्त के यहाँ पार्टी पर गई हुई हैं। मुझे आपसे तैयारी करनी थी, क्या आप करवा देंगी? क्यों नहीं मेरी गुड़िया, मैं अभी 2 मिनट में आपको तैयारी करवाती हूँ, आपको बहुत अच्छा टेस्ट तैयार हो जाएगा। सरीना जल्दी से कपड़े पहन कर आई और इसे प्यार से समझाने लगी। हायका कुछ ज़हन नहीं थी मगर ज़रा सी देर से बात को समझती थी। सरीना ने इतने प्यार से टेंसेस की तैयारी करवाई कि इसे खुद से जुमले बनाने भी आ गए थे। तकरीबन आधे घंटे के अंदर हायका प्रेज़ेंट टेंस सीख चुकी थी। अरे वाह! क्या हायका, आप तो एकदम सीख गए। शुक्र है मैं आपके पास आ गई। आपको पता है बाबा जान ने मुझे ऑफ़र की थी पढ़ाने की, मगर वो जब भी मुझे इंग्लिश सिखाते हैं मेरे टेस्ट भी गंदे नंबर आते हैं। हायका ने इसी अंदाज़ में बोला कि सरीना के चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि हायका के बाबा जान साइम भाई इंग्लिश के अलीबे से वाकिफ़ थे। वो कहाँ जानते थे कि टेंसेस के रूल्स क्या हैं। मगर हायका की मम्मा जान सिर्फ मैट्रिक पास थी। इन पर रोक झाड़ने के लिए वो हायका को गलत इंग्लिश सिखाते थे ताकि इनका भरम कायम रहे कि वो पढ़े लिखे हैं, जबकि हकीकत तो ये थी इंग्लिश के नाम से भी इनको चिढ़ थी। अरे नहीं गुड़िया, आपके बाबा जान जो इंग्लिश सिखाते हैं वो आपको इतनी मुश्किल है कि मुझे और आपके टीचर को भी समझ नहीं आती, वरना आपके बाबा तो अंग्रेज़ी दान हैं। सरीना ये बात करते हुए अपनी मुस्कुराहट दबा गई। वो क्यों साइम भाई का भरम तोड़ती, वो अपनी बीवी को इतना प्यार देते थे। बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि इनका भरम इनकी बीवी के आगे ना टूटे, तो ऐसा क्यों करती? पता नहीं फूफो, पर मुझे कल के टेस्ट पर रिस्क नहीं लेना था, इसलिए आपके पास आ गई। थैंक यू सो मच फूफो। वर सरीना के गाल पर अपने नन्हे लप रखते हुए बैग उठाकर भाग गई। सरीना अब भी ये सोचकर परेशान थी कि ताई और माविश को इसके यहाँ आने का जब पता लगेगा तो कैसा रिएक्ट करेंगी। चाचू जान, आपको पता है मेरी इंग्लिश के टेस्ट में फुल मार्क्स आए हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि जब भी मेरे इंग्लिश के टेस्ट में पूरे नंबर आएँगे तो आप मुझे गिफ्ट देंगे। सकलेन जैसे ही घर में दाखिल हुआ, हायका खुशी से जाके इससे लिपट गई। अरे अरे चाचू की जान, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे अपना वादा याद है बच्चे। आप बताइए आपको क्या गिफ्ट चाहिए, मैं देने के लिए तैयार। वो ना मुझे, हाँ, हाँ, मुझे ना चॉकलेट वाली आइसक्रीम खानी है, वो भी अभी। हाय मेरा बच्चा उसके गाल पर लप रखते हुए बोला, डन हो गया, अब जल्दी से तैयार होके आइए, मैं सामान ऊपर रूम में रख कर आता हूँ। वो उसकी मासूम सी ख्वाहिश पर मुस्कुरा उठा और वो इसे इतनी प्यारी थी कि वो कुछ भी मांगती इसे ला देता। इसकी मासूम ख्वाहिश। अच्छा ये तो हाय का आपने बताया नहीं कि आप तो इंग्लिश में कमज़ोर हो, किसने तैयारी करवाई? लगता है मारविश फूफो ने काफ़ी मेहनत की है इस दफ़ा। अरे नहीं, कल मारविश वो अपनी दोस्त की तरफ पार्टी पर गई हुई थी, तो मजबूरन मुझे सरीना आपी के पास जाना पड़ा, उन्होंने तैयारी करवाई है। हायका आगे भी बोली जाती मगर इस नाम के बाद सकलेन हैदर की समातों ने सुनने से इनकार कर दिया था। ये नाम इसे तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देता था। इसे इस नाम से इश्क था, मगर ये इश्क इसके लिए सुहाने रूह था। इस इश्क ने इसे अजियतों के सिवा कुछ नहीं दिया था। 4 साल से ये नाम इसके सामने किसी ने नहीं लिया था, क्योंकि सब जानते थे सकलैन इस नाम पर तड़प उठता है। मगर हायरा तो बच्ची थी, अपनी नादानी में इसके ज़ख्म छेड़ बैठी। इस वक़्त इसके चेहरे पे एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था, वो ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हायका सकलैन के चेहरे के बिगड़े ज़ाविये देखकर परेशान हुई, आखिर इसने ऐसा भी क्या गलत बोल दिया? चाचा जान आपको क्या हुआ है? आपका रंग पीला क्यों पड़ रहा है? अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो कोई बात नहीं, फिर कभी चलेंगे। अरे नहीं मेरी जान, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस यूँ ही थोड़ा सर में दर्द हो रहा था। आप जल्दी से रेडी होकर आओ, हम चलते हैं। आर यू श्योर यू आर फाइन ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, जल्दी से रेडी होकर आओ और भाभी को भी बता कर आना। वो खुशी से तैयार होने भागी। सकलैन की रगें इसके जाते तन गई थी, इसने मुश्किल से अपने जज्बात पे काबू किया हुआ था।
ये अज़ियत तो वो पिछले 4 सालों से सह रहा था, ये दर्द तो इसका उम्र भर का था। वो अपनी इज़्ज़त की खातिर मासूम बच्ची की खुशी क्यों बर्बाद करता? इसे अब इस दर्द के साथ जीना सीख लेना चाहिए था, क्योंकि जिसकी खातिर वो सारी दुनिया से लड़ने का हौसला रखता था, जिसकी ज़ात पे इसे खुद से ज़्यादा एतबार था, दुश्मनी जहाँ इसका नाम लेना भी गवारा नहीं करती थी। वो अपनी इज़्ज़त को परे झटकता, अपने जज़्बात को ज़ब्त करता हुआ खड़ा हुआ। आरज़ी नहीं होते, आरज़ी मोहब्बत के। हाँ, हाइका और सकलैन हैदर आइसक्रीम खाकर लौटे तो तब तक शाम ढल चुकी थी। असर के बाद इनकी फैमिली का मामूल था, टीवी लाउंज में सब इकट्ठे बैठकर चाय पीते थे और फिर शाम तक ऐसे ही बैठे रहते। इनकी मुख्तसर सी फैमिली थी। नादिया बेगम और खलील हैदर घर के बड़े थे। इनके 3 ही बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा साइम था, जिसकी शादी हो चुकी थी और अल्लाह ने इसे फूल सी बेटी हाइका की सूरत में अता की थी, और फरिया इसकी मनचाही बीवी थी। साइम से छोटा सकलैन हैदर है और सबसे छोटी बेटी मारविश है, जिसने छोटे होने का भरपूर फ़ायदा उठाया और बेजा लाड प्यार की वजह से काफ़ी बिगड़ गई थी। घर में वही होता था जो मारविश चाहती थी। इसकी इजाज़त के बगैर कोई काम हो तो घर में हंगामा खड़ा हो जाता था। इस वक्त भी सब लॉन्च पे टीवी के आगे बैठे चाय पी रहे थे। हाइका भागते हुए दादा अब्बू खलील हैदर की गोद में जा बैठी और अपनी शॉपिंग इनके सामने दिखाने लगी। सकलैन ने आइसक्रीम खिलाने के साथ साथ इसे ढेर सारे खिलौने, कलर बॉक्स, पेंसिल बॉक्स और चॉकलेट्स का पूरा पैकेट लेकर दिया था। वो एक-एक चीज़ सबको दिखाते हुए खुशी से चहक रही थी। सकलैन तबीयत की नासाज़ी का बहाना बनाकर कमरे में जा चुका था। हाइका अब सारी चीज़ें मारविश को दिखाने लगी। "फूफो की जान, इतने सारे खिलौने, अरे इतने ज़्यादा चॉकलेट आपको चाचू ने दिलाई है, तो इनमें से आधा हिस्सा तो मेरा है ना? आफ्टर ऑल आपके टेस्ट की तैयारी जो मैं करवाती रही हूँ।" मारविश चॉकलेट्स के पैकेट को देखते हुए बोली, "हाँ पप्पू जान, चॉकलेट तो वैसे भी आपको दे दूँगी, लेकिन इस बार टेस्ट में अच्छे नंबर सरीना पप्पू की वजह से आए हैं, क्योंकि कल आप अपनी दोस्त के यहाँ पार्टी पे गई हुई थी, तो मजबूरन मुझे सरीना पप्पू के पास तैयारी करने जाना पड़ा।" सरीना का नाम सुनते ही मारविश के चेहरे के ज़ाविये बिगड़ गए। इसके माथे की रगें तन गई। मारविश का बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर बैठे। इसने खिलौने और चॉकलेट उठाकर ज़ोर से ज़मीन पर पटके और गुस्से से चिल्लाने लगी, जबकि नादिया बेगम इसे और शह देने लगी। "हाँ हाँ, पढ़ाया मेरी बेटी ने और नाम रोशन इस सरीना का ही कर रही है। अरे मैं पूछती हूँ, इस घर के सारे फर्द मर गए थे क्या जो इसे इस मनूस के पास भेजा? फरिया है।" फरिया बेचारी खौफ से लाल पीली हो रही थी। इस घर में गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन इसे हमेशा मारविश की वजह से अपनी नाकर्दा गलतियों का खमीसा भुगतना पड़ता था। वो किचन में खड़ी थर-थर काँप रही थी जब मारविश इसके सर पर जा खड़ी हुई। फिर फरी भाभी, जब मैंने मना किया था कि हमारे घर से कोई भी शख्स इस सरीना मनुज के घर नहीं जाएगा, तो मेरी इजाज़त के बगैर हाइका वहाँ क्यों गई? मारविश शदीद गुस्से में चिल्लाकर बोली, "मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब आपकी ज़बान को ताला क्यों लग गया? देखो मारविश, आप सुकून से बात करो। हाइका को मैंने मना भी किया था कि जब आप आ जाओ तो आप तैयारी कर ले, मगर वो बदज़िद्दी से जान आए। छोटी बच्ची है, नासमझ है, नादान है, बात को नहीं समझती। मेरे रोकने के बावजूद चली गई। हाँ हाँ, आप कहाँ मना करती हैं? आप तो दिल से इन दुश्मन के साथ हैं। आपको क्या परवाह कि इसकी वजह से मेरा भाई पल-पल मर रहा है। वो दिन-रात इसके लिए तड़प रहा है, जो एक रात में अपनी इज़्ज़त गँवा कर बैठ चुकी है। मगर आपको क्या लगी सकलैन के दर्द से आपका क्या ताल्लुक?" फरिया कुछ ना बोली। आँसू उसकी आँखों से रवा थे। वो इस घर के हर फर्द से मोहब्बत करती थी और सकलैन तो इसके लिए भाइयों से बढ़कर था, मगर अपनी वफ़ादारी का इश्तिहार नहीं लगा सकती थी। खलील हैदर जो कब से खामोशी से इस सारे हंगामे को देख रहे थे, इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मारविश और भी कुछ बोली थी जब खलील हैदर गुस्से से दहाड़े, "मारविश, कुछ रिश्ते का लिहाज़ करो, वो रुतबे में तुमसे बड़ी है, और ख़बरदार सरीना के बारे में कुछ उल्टा-सीधा बोला तो वो मेरे मरहूम भाई की निशानी है, जिसे मरते वक़्त वो मेरे सुपुर्द कर गया था। वो भी मेरी बेटी है जैसे तुम हो।" मारविश ने लबवाही किए थे कि कुछ बोलने के लिए कि खलील साहब बोल पड़े, "ख़बरदार, ख़बरदार मेरे आगे ज़बान चलाई, ये सब तुम्हारी माँ की दी गई शय है। नादिया ने तुम्हें काफ़ी टोका ही नहीं, इसलिए तुम्हें इतना सर पे चढ़ा लिया कि तुम्हें बड़े और छोटे की तमीज़ नहीं। मैं कब से खामोशी से तमाशा देख रहा था कि अभी नादिया तुम्हें तुम्हारी बदतमीज़ी पे टोकेगी, मगर इसे फ़र्क नहीं पड़ा।" अज़ान की आवाज़ सुनकर नादिया जो टीवी बंद करने जा रही थी, खलील साहब की बात सुनकर तिलमिला उठी। "हाँ हाँ खलील साहब, आपके लिए मेरी और मेरी बेटी दोनों ही बुरे हैं। हर गलती आपको हमारे अंदर दिखाई देती है। चलो मारविश, अंदर कमरे में चलो, इनको अपनी लाडली बहू को तसल्लियाँ देने दो। ये हमेशा सरीना के गुण गाते रहे और अब फरिया ने इनको अपने विश में कर लिया है।" वो दोनों माँ बेटी गुस्से से पैर पटकती कमरे में चली गईं। खलील साहब किचन में आए तो फरिया बर्तन समेटते हुए ज़ोर कतार रो रही थी। खलील साहब फरिया के सर पर हाथ रखते हुए बोले, "बेटा तुम दिल पर मत लेना, मारविश अभी बच्ची है, नादान है, नासमझ है, मगर तुम समझदार हो मेरी बेटी। माना कि उम्र में इतना ख़ास फ़र्क नहीं, मगर तुम अपना दिल बड़ा रखना।"
आंसू फरिया की आंखों से झलकते हुए इससे पहले वो अपने ऊपर ज़ब्त करती हुई बोली, जी अब्बू जी, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगरिब की अज़ान हो चुकी है, आप नमाज़ अदा करें, मैं साइम को फ़ोन करती हूँ, अभी तक क्यों नहीं आए। वो आंसू अपने अंदर पीती वहाँ से जा चुकी थी। वो फ़ोन के बहाने कमरे में आई तो हाइका सहमी हुई थी। वो अपने टूटे हुए खिलौनों को सीने से लगाए हिचकियों से रो रही थी। एकदम अपनी मम्मा के सीने से जा लगी। मम्मा मम्मा जान, वो फूफो ने मेरे सारे खिलौने तोड़ दिए। चाचू ने इतने सारे खिलौने लेके दिए थे, वो सारे के सारे तोड़ दिए। इसे अपने खिलौनों का इतना दुःख था कि वो बोल नहीं पा रही थी। मारिश फूफो बहुत गंदी है, मैं इनसे कभी बात नहीं करूँगी, मैं कभी बात नहीं करूँगी। टूटे बिखरे खिलौनों को देखकर इसके रोने में मज़ीद रवानी आ चुकी थी। अरे, अरे मेरा बच्चा, ऐसे नहीं कहते, आपकी फूफो तो आपसे बहुत प्यार करती है ना, बस अभी स्ट्रेस में है ना, तो इसलिए आप पर गुस्सा कर गए। चलो उठो, शाबाश, नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ते हैं। आपके बाबा भी अभी आने वाले हैं और अपनी परी को रोता देखकर परेशान हो जाएंगे, और वैसे भी हम कल मार्केट जा रहे हैं, मैं आपको नए खिलौने दिला दूंगी। दोनों वजू करने की नीयत से उठ गई। अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा नाश्ता करने का, आप प्लीज़ खुद कर लीजिएगा। नयाब कब से हॉर्न दे रही है, इसका ड्राइवर नहीं था इसलिए वो खुद मुझे लेने आई है। अरे बेटा, नाश्ता करती जा और नयाब को भी बुला ले, इसे मेरे हाथ के पराठे बहुत पसंद है। अरे अम्मी, इस पेटू को रहने दे, पराठों के नाम पे इसके मुंह में पानी आ जाता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि पेटू को नाश्ता करवा सकूं। वो कहकमा लगाती हुई जल्दी से जाने लगी। अरे खुद तो करती नहीं, इसे भी नहीं करने देती, ये निकम्मी लड़की, अल्लाह जाने कब सुधरेगी। लव यू अम्मी, खुदा हाफिज़। वो तेज़ कदम उठाती घर की दहलीज पार कर गई। वो नाश्ता करके यूँ टेरेस पे जा खड़ा हुआ था। अभी ऑफ़िस जाने में ज़रा देर थी तो इसने सोचा टेरेस पे जाके ठंडी हवा के मज़े लिए जाए। और वैसे भी वो हर हफ्ते बाद इस जगह ज़रूर आता था, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसे अपनी दुश्मन जान की एक झलक नसीब हो जाए, मगर बेसुध। वो तो शहर में क्या, अपनी छत तक जाना तर्क कर चुकी थी। इसने दिन को भी रात को तारीकी अपने ऊपर फ़र्ज़ कर ली थी। आज भी सकलैन हैदर मामूल के मुताबिक निगाह डालकर पलटने लगा था, मगर ये क्या, इसकी नज़रें सामने वजूद पर ठहर सी गई। आज वो वाक़ई दिख गई थी। सकलैन की आँखें तरस गई थी इसे देखने के लिए। सकलैन को लगा पूरी दुनिया एक जगह रुक गई है। वो दुश्मन जान अपनी तमाम तर वजूहातों के साथ सामने राहदरी से गुज़र रही थी। या खुदा, क्या मैं सच में इसे देख रहा हूँ? क्या मेरी हिस्से बसीरत ठीक से काम कर रही है? वो बेयकीनी के आलम में आँखें सटपटाते हुए पलकें झुका रहा था, जैसे अपनी नज़र पे यकीन नहीं आ रहा हो, जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। हाँ, अनहोनी तो हुई है। इस परी पेकर ने ठीक 4 साल बाद घर से बाहर कदम रखा था। इसकी चमक से सकलैन की आँखें चुंधिया रही थीं, क्योंकि इसे 4 साल तक कोई हसीन चेहरा नहीं देखा था। वो हक्का-बक्का खड़ा हॉन्कों की तरह से देखे जा रहा था। वो स्किन कलर के टू पीस बिल्कुल प्लेन सूट और ऊपर मैरून कलर के लंबे दुपट्टे में सीधा दिल में उतर रही थी। वो नयाब के साथ गाड़ी में बैठी और गाड़ी रवाना हो गई और सकलैन हैदर का दिन बन गया। आखिरकार काफ़ी मुद्दतों बाद दीदार यार हुआ था। साइम रात को देर से आने की वजह से काफ़ी देर तक सोया रहा। फरिया ने इसे नींद खराब होने के डर से इसको जगाया ही नहीं। दूसरा, कल रात से हाइका की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। साइम के पूछने पर फरिया ने बताया इसे मौसमी बुखार हुआ है, जिसकी वजह से इसे आंखों के इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि साइम ने इसकी आंखों में छाई सुर्खी का पूछा था। फरिया नाश्ता तैयार करके जैसे कमरे में आई तो साइम को भाग जागता हुआ पाया। अरे आप जाग गए, मैं कब से आपके जागने की मुंतज़िर थी। मम्मा, बाबा और माविश 2 दिन के लिए बड़ी खाला की तरफ जा रहे हैं, बल्कि जा चुके हैं। सकलैन भी ऑफ़िस जा चुका है। हाइका और आप सोए हुए हैं तो मैं क्या करूँ? फरिया अपनी मासूमाना शक्ल बनाते हुए बोली, अरे बेगम, यहाँ आइए ना, आप भी हमारे साथ आराम करें। अरे नहीं, मुझे आराम की आदत नहीं है, मुझे आपके और हाइका के लाड उठाना अच्छा लगता है। अरे बेगम, कभी हमें भी अपनी लाड उठाने का मौका दें। उम्मीद है वो मायूसी नहीं होगी, वो ज़ोमैनी अंदाज में बोला, मगर फरिया की असली मासूमियत वो साइम का नुक्ता नज़र न समझ सकी। मैंने नाश्ता बना दिया, ठंडा हो जाएगा और फिर दोबारा गर्म करने पर इतना लजीज नहीं होगा। हाइका, बच्चे उठे मेरी जान, अभी बेहतर महसूस कर रही है। वो पास में लेटी हाइका की आंखों में छाई सुर्खी देकर बोली, क्योंकि रात साइम बहुत लेट आया था और हाइका ने रो रो के अपना बुरा हाल बना दिया था, क्योंकि इसे अपने इन खिलौनों का इतना शदीद दुख था, जो भी इस्तेमाल ही नहीं हुए थे और वो माविश ने चकनाचूर कर दिए। लेकिन फिर फरिया ने बहला फुसला कर इसे मना लिया था कि वो बाबा को असल हकीकत नहीं बताएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी घर में इसकी वजह से हंगामा बर्पा हो। लेकिन हाइका की आंखें रगड़ने की वजह से वो सुर्खी माइल हो गई थी और अपने रोने का पता खुद देती थी। इसे साइम के सामने से बीमारी का ड्रामा रचाना पड़ा। अगर तो वो बता देती सारी हकीकत तो साइम को 2 प्यारे रिश्तों की वजह से किसी एक की तरफ दारी करना पड़ती, क्योंकि बहन और बेटी दोनों ही मुकद्दस रिश्ते हैं।
माफ़ीज़ की कदर जाने या न जाने, मगर एक रिश्तों से महरूम लड़की जिसके पास साइम और हाइका के सिवा कुछ नहीं हो, वो कभी किसी और के रिश्ते में दरार डालना पसंद नहीं करती थी। इसलिए वो चाहकर भी साइम को नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो रिश्तों की कदरदान थी। इसकी आवाज़ में हाइका ज़रा सी कसम साइम, मम्मा जान मुझे मज़ीद सोना है। अरे मेरा बच्चा, आप फिर से सो जाना, आज आपके बाबा जान भी है ना। बाबा जान ऑफिस नहीं गए? बाबा जान के नाम से वो एकदम खिल उठी। जी मेरी जान, साइम जहाजी साइज बैठ के कोने में लेटे हुए बोले। याहू, आज मैं और बाबा खूब मज़े करेंगे। वो बाबा के नाम पर रात वाली तलखी भूलकर एकदम खिलखिला उठी। ये हंसती बसती छोटी सी फैमिली आज एक साथ कितनी अच्छी लग रही थी। फरिया हाइका पे सबके वारी हो रही थी, और साइम इन दोनों पर। इनको किसी की नज़र न लगे, ख़ास तौर पे मारविश की। सरीना अपने मामूल के मुताबिक तैयार होकर पार्लर जाने के लिए निकलने लगी, तो इसे याद है कि इसने रोज़ की तरह आज फिर नाश्ता नहीं किया। अब वो अम्मा को खुदाफिज के बगैर नहीं जा सकती थी, और बता के भी जाती तो अच्छी खासी सलावतें सुनने को मिलती, मगर मरती क्या न करती कि मस्ताक इसे मजबूरन किचन में खड़ी खड़ी अम्मा को पुकारना पड़ा। अम्मा जान, मैं पार्लर जा रही हूँ, ड्राइवर बस आता ही होगा, आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अरे लड़की, ढंग से नाश्ता तो करती जा, हर वक्त जल्दी बनाई हुई होती है। मैं तुझे कह रही हूँ कि तू कॉलेज जाने के साथ साथ अपनी तालीम भी दोबारा से जारी कर ले, ताकि तेरी आधी अधूरी तालीम भी तकमील हो जाए। कौन सा तेरी उम्र चली गई है, अभी तुम्हारी पढ़ाई के दिन है। अम्मी किचन से बाहर आती हुई बोली। आप भी हद करती अम्मा जान, मैं तो कॉलेज जाने के लिए भी तैयार नहीं थी। आप और नयाब की इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वजह से मैं रजामंद हो गई थी। अरे बेटा, मुझे लगा मेरी ज़बरदस्ती करने पर तुम दोबारा से अपनी तालीम जारी कर लोगी, मगर खिलाफ तवक्को तुमने मेरी कॉलेज जाने वाली बात को संजीदा ले लिया। हालांकि तुम्हें बनाव सिंगार और बनने संवरने में ज़रा दिलचस्पी नहीं। अम्मी, आप ही किस हाल में खुश नहीं हूँ। चले, मुझे लगता है ड्राइवर आ गया है, हॉर्न की आवाज़ आ रही है। अरे बेटा ठीक है, चली जाना, मगर मेरी बात पर गौर करो, हो सके तो दोबारा अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। तुमने 4 सेमेस्टर कर लिए थे, बाकी 4 बाकी रह गए थे। तुम भी अभी ज़ूलॉजिस्ट कहलाती। यूनिवर्सिटी के नाम से सरीना के चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए। आपके कहने पर मैंने घर से कदम रखा, क्या ये काफ़ी नहीं है? खैर, मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, ड्राइवर काफ़ी वक्त से हॉर्न दे रहा है। अल्लाह हाफिज़। सरीना के लहजे में अचानक से तल्खी दर आई थी, और अम्मा जान ने महसूस भी कर ली थी, मगर वो खामोश रहीं, कुछ ना बोली। सरीना अम्मी को खुदाफिज कहकर एकदम बाहर निकली कि मवद्दा अम्मा इसकी आंखों में अचानक से आया दुख ना पड़ ले, क्योंकि वो इन्हें नहीं बता सकती थी कि यूनिवर्सिटी के नाम से इसके पुराने ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं, उन्हीं के जिगर से कि इसकी रूह तक छिलनी हो जाती है। यूनिवर्सिटी के नाम से इसकी हालत गैर हो जाती है। अच्छा कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मुस्कुराहट तो एक नुमाइश है, ये नुमाइश दलील हलाल तो नहीं। आज नयाब की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो पॉलर का सारा काम सरीना के सुर्द करके जा चुकी थी। 3 दिन हो गए थे सरीना मुसलसल घर से बाहर आ जा रही थी, मगर इसका खौफ, लोगों की तंजिया नज़रों से हिचकिचाहट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सरीना का इरादा आज शॉपिंग मॉल जाने का था, मगर वो अकेली कैसे इतने अरसे बाद गाड़ी से बाहर कदम रखेगी, इसे सोच के पसीने आ रहे थे। लेकिन आखिर कब तक वो यूँ डरती रहेगी? लोग गुनहगार होकर भी सीना तान कर चलते, और वो बेगुनाह होके लोगों से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। आखिर वो क्यों ज़माने की परवाह करे, जब इसकी अम्मा जान और उसकी जान से प्यारी दोस्त इसे बेकसूर समझते हैं। आज सरीना ने ठान ली थी कि वो बगैर किसी सहारे के आज शॉपिंग मॉल जाएगी। जब वो गुनहगार ही नहीं, तो वो क्यों लोगों की परवाह करे? इससे ड्राइवर को कॉल कहकर आने का भूला। शाम के 5 बज रहे थे। ब्यूटिशियन को पार्लर की चाबी देकर वो एक सीनियर ब्यूटिशियन को पार्लर की चाबी देकर वो बाहर निकल गई। सकलैन हैदर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। बाकी के सारे ऑफिस वर्कर कब की छुट्टी के करके जा चुके थे। सकलैन एक मल्टीनेशनल कंपनी मैनेजर मैनेजर की जॉब करता था। वो अपने काम से इतना मुखलिस था कि पूरे ऑफिस में हर कोई इसकी इज़्ज़त करता था। ऑफिस के बॉस से ज़्यादा तो सकलैन हैदर की सुनी जाती थी। सकलैन एक जागीरदार घराने से ताल्लुक़ रखता था। इसे इस किस्म की कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ज़मीनों से इतने पैसे आ जाते थे कि वो पूरा साल भी बैठकर खाए तो भी ज़्यादा थे। मगर सकलैन हैदर को जागीरदारी निज़ाम से सख्त मुतनफ़िर थे। वो इसे अपने गाँव वालों पे हुक्मरानी करने का कोई शौक़ नहीं था। पहले ज़मीनों का ज़्यादातर काम इफ्तिख़ार चाचू मरहूम सँभालते थे, मगर इनकी अचानक हादसाती मौत की वजह से अब सारा काम इसका बड़ा भाई साइम साइम और अब्बू सँभालते थे। इफ्तिख़ार चाचू का भी किसी से अचानक ज़मीनों के इख्तलाफ की वजह से कत्ल किया गया था, जिसकी बात तो सकलैन का दिल इन जागीरदारी निज़ामों से बिल्कुल उजाड़ हो गया था।
अब वो अपने ही एक दोस्त की कंपनी में मैनेजर मैनेजर के ओहदे पर फाइज था, बल्कि यूँ कहना बेजाना था। सकलैन ने अपने दोस्त को रखा हुआ था। वो कभी-कभार ऑफ़िस जाकर चक्कर लगा लिया करता था, बाकी का सारा निज़ाम सकलैन हैदर सँभालता था। सकलैन हैदर अब भी सरीना की सोच के सार में था। वो आज हद से ज़्यादा खुश था। वो शख्स का दिल की गहराई से शुक्रगुज़ार था कि जिसकी वजह से ये मुआवज़ा हुआ था। वो कब से ये सोचता था कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि सरीना ने अपनी कसम तोड़ दी। सरीना का यूँ आहिस्ता-आहिस्ता चलना, फिर गाड़ी में बैठना, इसे रह-रह के याद आ रहा था। ऐसा नहीं था कि सरीना कोई बहुत ही खूबसूरत थी, वो एक नॉर्मल सी शाम शक्ल की आम सूरत लड़की थी। हाँ, इसकी आँखें इतनी खूबसूरत थी, किसी को अपने शहर में जगड़ने की ताकत रखती थी, और शायद सकलैन हैदर भी इसी शहर का वो शिकार हुआ था। इसके मुकाबले में सकलैन हैदर इंतहाई जाज़िब नज़र और नफीस शख्स का मालिक था, अपने से काम रखने वाला। गुंदमी रंगत, दरमियाना कद, एक साइड पे खूबसूरत मोड़े हुए बाल, तीखे नक्श व बला का हसीन था। वो अपने हुस्न से किसी को ज़ेर करने की सलाहियत रखता था, मगर वो खुद सरीना की शख्सियत के हिसार में था। सकलेन की पर्सनैलिटी का इतना रूप था कि ऑफ़िस की हर लड़की इसकी शख्सियत की दिलदार थी, मगर मजाल है जो कोई इससे कह पाए, क्योंकि सकलेन हैदर के माथे पे हमेशा नो लिफ्ट का बोर्ड लगा होता था। लड़कियों के मामले में इसके चेहरे के तासुरात इतने सर्द होते थे कि कोई भी लड़की इससे बात करते हुए हिचकिचाती थी, क्योंकि वो सिर्फ़ एक लड़की को सुनने और देखने समझने का ख्वाह था। बाकी वो हर लड़की को इज़्ज़त करता था और किसी भी गलत इरादे से अपने साथ नहीं बांध सकता था। वो अपनी सोचों में गर्क था जब इसे असर की अज़ान की आवाज़ आई और वो अपनी सोचों से बाहर आया। आज वो बहुत खुश था। सकलैन का इरादा शॉपिंग मॉल जाने का था। आज वो दिल से पुरसुकून था, इसलिए इसने सोचा आज वो अपनी खुशी अपनी प्यारी सी भतीजी हाइका के साथ सेलिब्रेट करेगा। इसके लिए ढेर सारी शॉपिंग करेगा। वो जब भी खुद खुश होता था, वो अपने प्यारे लोगों को इसी खुशी में शामिल करता था। ये अलग बात है कि वो कौन-सी खुशी किस वक़्त किसके साथ सेलिब्रेट कर रहा है, इसका अंदाज़ा नहीं होने देता था। 4 साल पहले वो हर खुशी सेलिब्रेट करता था, मगर सरीना के साथ इस भयानक हादसे के बाद वो सिर्फ़ हाइका की खुशी में खुश होता था, क्योंकि वो बच्ची थी और वो नहीं समझती थी कि कौन किस कर्ब से गुज़र रहा है। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करता कि इसे खुश रख सके, बल्कि यूँ कहा जाए कि सरीना का कतई ताल्लुक के बाद सकलैन की जीने और मुस्कुराने की जगह सिर्फ़ वो नन्ही गुड़िया थी। वो ऑफ़िस बंद करते हुए हाइका को सरप्राइज़ देने का सोचता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो शॉपिंग मॉल के सेकंड फ्लोर पर अपनी अम्मी के लिए हल्के रंग के कपड़े देख रही थी। अपने लिए वो काफ़ी शॉपिंग कर चुकी थी, क्योंकि अब इसका बाहर आना-जाना था, तो सूरत में कपड़े, जूतों की अच्छी खासी ज़रूरत पड़ती थी। वो कब से कपड़े और चादरें देख रही थी, मगर इसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या ले। एक तो वो कोई रंग पसंद नहीं कर पा रही थी, ऊपर से इतने अरसे बाद आई थी, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ थी। वो शॉपिंग मॉल के बिल्कुल सेंटर में आई, तो इसे एक बड़ी चादर अच्छी लगी। वो इसे उतार कर काउंटर पे रखकर एक बिल बनाने का इंतज़ार करने लगी। बिल पेन के चट इसे दे दी कि वो पैसे देकर जैसी पलटी, एक चट्टान-नुमा कशादा सीने से जा टकराई, उससे सारे बैग्स नीचे गिरे। बग़ैर ऊपर देखे बैग्स उठाती हुई बोली कि आपको मैं नज़र नहीं आई क्या? आप अंधे हैं? टकराने वाला शख्स तो इस खुशगवार टकराव के एहसास से नहीं निकल पा रहा था। आप ही तो दिखाई देती हैं, लेकिन आप ऐसे दिखाई देती कि बाकी कुछ नज़र ही नहीं आता, इसलिए आप कह सकती कि मैं अंधा हूँ। वो बैग्स उठाते हुए एकदम पलटी। वो इस आवाज़ से आशियाना थी। 4 साल ये आवाज़ ना सुनने के बावजूद वो इसकी आवाज़ को पहचान गई थी। आप जी, मैं कैसी हैं आप? मेरे सामने से हटें, मुझे देर हो रही है। मैं तो 4 साल से आपकी राहों में खड़ा हूँ। मैंने तो देर-सवेर की शिकायत कभी नहीं की। वो बराह रास्त इसकी काली गहरी आँखों में देखकर करब से बोला। वो आपका मसला है, मेरा नहीं। सरीना लापरवाही से बोली। मेरे तो सारे मसले ही आपसे हैं। वो भी फ़ौरन बोला। देखिए मेरा रास्ता छोड़िए, मैं बहुत बदनाम हो चुकी हूँ, मगर मैं आपके साथ किसी भी ताल्लुक के जोड़ने से पहले मर जाना पसंद करूँगी, और आप अपनी नेकनामी की परवाह करें और हम जैसे नापाक लोगों से दूर रहें। सकलैन की माथे की रगें तन गई थी। वो गुस्से को ज़ब्त करता हुआ बोला, हमें नेकनामी रास नहीं आती, हमें आप जैसे बदनाम दिल और जान से अजीज़ हैं। फिर आपको क्या मसला है? लेकिन सकलैन 4 साल पहले इस रात आपने ज़ाहिर किया कि बहुत बड़ी गलती की थी, और 4 साल बाद आप मेरे रास्ते में आकर गलती कर रहे हैं। आपको मेरी ज़ात मेरे लिए कल भी अज़ियत का बाज़ बनी थी, और आज भी फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। आपको खुदा का वास्ता मेरी जान छोड़े। ताईजान मेरी अम्मा की ज़ात और इनकी तरबियत में मज़ीद कीचड़ उछाले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती।
میری ذات پہ لوگوں سے زیادہ آپ کے گھر والوں نے گھاؤ دیے، اس لیے آئندہ میرے راستے میں آنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ وہ رو رہی تھی۔ سیکلین کو اس کی باتوں اور رونے سے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اسے رلائے، لیکن نہ چاہتے ہوئے اس کے رونے کی وجہ بن چکا تھا، اور یہ باتیں اسے مزید دکھ میں دھکیلتی تھی۔ اس کی ذات سرینا کی خوشی کا سبب کیوں نہیں بن سکتی تھی؟ اس کے رونے میں مزید روانی آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر روتی، وہ آہستہ سے سائڈ پر ہو گیا۔ سرینا روتے ہوئے بھاگنے والے انداز سے دور جا چکی تھی۔ وہ اس کے غائب ہونے تک اس کی پشت کو کافی دیکھتا رہا۔ وہ 4 سال بعد ملا بھی تو کس حالت میں؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے مال سے نکلنے لگا۔ ہم دلاتے ہیں منافع کی ضمانت تجھ کو، ہم خریدیں گے محبت کے خسارے سارے۔ سرینا جلدی سے آ کے گاڑی میں بیٹھی تو اسے پتہ ہی نہیں چلا کب آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر آبشار کی طرح بہنے لگے ہیں۔ جتنا وہ چاہتی تھی کہ شخص سے سامنا نہ ہو، وہ آج سامنے آ گیا تھا۔ وہ تائی جان کی جانب سے کی گئی زیادتی چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتی تھی۔ وہ ذلت صرف اور صرف ثقلین حیدر کی وجہ سے ملی تھی۔ ایک تو بھیانک رات اتنی خوفناک تھی کہ اس رات سرینا کی محبت اس سے چھن گئی تھی۔ وہ تو اتنی بدقسمت تھی کہ اس کی محبت کا ماتم بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ وہ اپنا درد کسی سے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ درد کی ماری ہوئی لڑکی، محبت سے ہاری ہوئی لڑکی، شاید تقدیر کو اس رات سرینا کا امتحان لینا تھا۔ محبت تو چھینی گئی تھی، مگر اس رات وہ اپنی پاکیزگی کو بھی نہ بچا سکی۔ ایک سیاہ رات، دوسرا محبت کا ماتم، تیسرا رسوائی ہی رسوائی۔ اس رات کے بعد سرینا نے قسم کھائی چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، مگر وہ کسی صورت گھر سے قدم باہر نہیں نکالے گی۔ وہ جیے گی مگر ایک 4 دیواری کے اندر۔ 4 سال نیاب کی منتوں اور ترلوں کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ 4 سال تک سرینا کی اماں تڑپی تھی کہ وہ باہر قدم رکھے، مگر ان 4 سالوں میں ڈاکٹرز کو بھی گھر بلایا جاتا تھا، وہ بھی اس صورت میں جب سرینا روتی لگتی چیختی بے ہوش ہو جاتی تھی اور ڈاکٹر کو بلایا جاتا تھا۔ وہ بھی ہوش میں آنے کے بعد سرینا خوب ہنگامہ کرتی تھی کہ پتھر کی بنی، اس پہ موت نہیں آتی، اس لیے اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دیا جائے۔ اس نے 4 سالوں تک گھر کی دہلیز پار نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی محبت کا ماتم نہیں منایا۔ وہ حق نہیں رکھتی تھی، وہ کس حق سے اس کے پیچھے روتی جو کبھی تھا ہی نہیں اس کا۔ اسے محبت کے چھن جانے کا زیادہ افسوس تھا یا عزت کے چھن جانے کا؟ یہ فیصلہ آج تک نہیں کر پائی تھی۔ بہرحال عزت کے چھن جانے پہ ثقلین حیدر کے ایک خاندان کا اچھا خاصا رول تھا، اور وہ اس شخص کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی کلاس کی ہونہار اسٹوڈنٹ تھی، مگر آج وہ زیولوجی کا الف بے بھی نہیں جانتی تھی۔ ہر چیز سے محرومی کے بعد وہ تعلیم سے دستبر ہو گئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا گھر کب آیا۔ جب گاڑی رکنے پر جھٹکا لگا تو اسے پتہ چلا۔ وہ ڈرائیور کو گھر کے باہر سے ہی واپسی کا اشارہ دیتی گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ اپنی آنکھوں سے ٹشو صاف کرتے ہوئے چہرے کے تاثرات درست کرنے لگی، کیونکہ وہ اپنی ماں کے لیے مزید اذیت کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی۔ ثقلین کب سے اپنے کمرے میں بند تھا۔ ثقلین کو آفس سے نکلتے ہوئے جتنی خوشی تھی، وہ سرینا سے ملنے کے بعد ساری ہوا ہو گئی تھی۔ وہ اس کی بے رخی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس کے الفاظ ثقلین کا دل چھلنی کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ اس دن کو کوسا تھا کہ کاش وہ اظہار محبت نہ کرتا۔ اس نے تو سائرہ کی تکلیف کم کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ وہ تو سرینا نے پہ لگے الزام کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے اسے اپنا نام دینا چاہتا تھا، مگر اس کی ماں اور بہن نے وہ ہنگامہ کیا کہ سرینا نے اس رات ہمیشہ کے لیے ان سے سارے رشتے توڑ دیے۔ سرینا نے بولا تھا کہ وہ بدنام ہے، بدذات ہے، اس لیے ثقلین کی اعلیٰ ذات کا فیملی اس کے گھر میں قدم نہیں رکھے گی۔ وہ دن اور آج کا دن ثقلین کی فیملی اور سرینا لوگ نے قطع تعلق کر لی تھی، مگر ہائیکا ہمیشہ آتی جاتی تھی۔ مگر جب اسے لگا کہ اس کے آنے کی وجہ سے اس کی ماں کو ٹارچر کیا جاتا تو اس نے بھی آنا کم کر دیا تھا، بلکہ آنا ہی چھوڑ دیا۔ ثقلین کا دل چاہتا کہ وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے، جس نے ابھی اس رات سرینا کے ساتھ گھٹیا کھیل کھیلا ہے، اور اسے زمین کی تہہ سے بھی نکال سکتا تھا، مگر ایسا تب ہوتا وہ جب سرینا اسے کچھ بتاتی۔ ثقلین کا دل چاہتا وہ اپنی مخلصی کو ٹھکرائے جانے پر روئے، مگر وہ تو مرد تھا نا، کہاں رو سکتا تھا؟ یہی تو سکھایا جاتا ہے بچپن سے کہ مرد چٹان نما ہوتے ہیں، مرد نہیں روتے، کیونکہ مرد کے سینے میں دل نہیں ہوتا یا وہ جذبات نہیں رکھتے۔ کاش وہ بھی سرینا کی طرح خود کو گھر میں بند کر سکتا تھا۔ اگر بند ہو جاتا تو بدنامی ہوتی، جوگی یا روگی کا خطاب دیا جاتا۔ ثقلین کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی سرینا کا درد کم نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنے خالص جذبے لٹا کر بھی تہی دامن تھا، اور کیا دیکھنے کو باقی تھا اب دل سے لگا کے دیکھ لیا۔ سرینا جیسی گیٹ سے تیار ہو کر باہر نکلی، گلی میں ذرا دور گاڑی کھڑی تھی۔ وہ گاڑی تک چل کے جائی تھی کہ اسے اپنے اوپر کسی کی تیز نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ نظر انداز کرتی ہوئی
आगे बढ़ गई। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगी तो उसे फिर महसूस हुआ जैसे इस पर किसी ने नज़रें गाड़ी हुई हैं। इसे पीछे मुड़कर देखा तो उसे पीछे से दूर एक जगह किसी शख्स, किसी इंसान का हौला नज़र आया, मगर जब तक वो गौर करती वो साया गायब हो चुका था। वो अपना वहम समझती सर झटक कर गाड़ी में बैठ गई। अभी गाड़ी थोड़ी आगे ही गई थी कि ऐसा लगा कोई इसकी गाड़ी का पीछा कर रहा है, लेकिन इसने इस बात को भी ज़्यादा न संजीदा नहीं लिया। इसने ड्राइवर को गाड़ी रोक देने का बोला। इसे जिस गाड़ी पे शक था वो इनसे थोड़ा आगे निकल कर रुक गई। सलीना ने जैसे ही ड्राइवर को गाड़ी चलाने का बोला और गाड़ी जब इस कार के पास से गुजरी तो इसे वो कार वाला शख्स कुछ अनासा लगा, मगर वो ठीक से जान ना पाई। जैसे ही सलीना की गाड़ी थोड़ा आगे वो कार फिर से पीछे करने लगी। करीना परेशान हो गई थी, मगर इसने ड्राइवर से इस बात का ज़िक्र नहीं किया। जैसे-तैसे करके वो पार्लर पहुँची। इसने फिर से नज़रें बंद कर ली ताकि इसे कुछ सुनाई ना हो। आँखें बंद किए से पता ही नहीं चला वो कब पार्लर पहुँच गई। अब वो आज की सारी कार्रवाई नायाब के साथ शेयर करने का इरादा रखती थी। वो जैसे ही पार्लर हाँफती-काँपती पहुँची, नायाब को मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपना मुंतज़िर पाया। "अरे मेरी लाडो, तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है और तू इतनी घबराई हुई क्यों है?" ना वो अब वो ना आज एक गुंडा नुमा शख्स मेरा पीछा कर रहा था तेरे पार्लर से कुछ पीछे, मुझे लगता है वो वापस चला गया है। ना वो मेरे फिर लोग कहेंगे सलीना ऐसा करती है, लोग कहेंगे बाहर निकली और लड़के को पीछे लगा लिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे अरे ये बात है, इसमें खुशी की तो बात है, मेरी लाडो है ही इतनी प्यारी कि हर कोई इस पे फिदा। और तुझे क्यों लोग कुछ कहेंगे, तूने इसका पीछा लगाया या तूने इसको पीछे लगाया है? नहीं ना, जब आवारा किस्म के मर्द खुद ही बेखुदगी अपना ले तो हम क्यों बदनामी बर्दाश्त करें। तू फ़िक्र न कर, मैं देख लूँगी, तू बस अपनी आँखों का ध्यान रखा कर। इनके सहर से हर कोई बच पाए ऐसा मुमकिन ही कहाँ। अब मर्द बेचारे भी कैसे तेरी आँखों के सहर से निकल पाएँ, वो तो जब तेरी आँखों में देखते होंगे डूब ही जाते होंगे। शरारत भरी नज़रों से इसे देखते हुए गोया हुई। यार नाबो, तू भी बस करना, तू मेरी आँखों का पीछा कभी ना छोड़ना। चल आज मैं हेयर कटिंग की क्लासेस लूँगी। ओके चल मेरी लाडो। नया अपने बातों में बहला-फुसला के इसका ध्यान हटा दिया था, लेकिन वो खुद परेशान हो गई थी कि अब ये कौन-सी मुसीबत गले पड़ने को थी। बड़ी मुश्किल से इसने सरीना को बाहर कदम रखने पर मजबूर किया था और अब ये पता नहीं कौन-सी बला गले आ पड़ी थी। वो सर झटकती हुई सरीना के पीछे चल दी। वो एक दिन से कमरे में बंद था। इसे ना खाने का होश था, ना पीने का। फ़रिया कितनी दफ़ा आके तबीयत का पूछ चुकी थी। इसे बिना दरवाज़े खुले अंदर से बोला कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा, इसलिए सोया हुआ है। अभी भी सकलान का कोई इरादा नहीं था उठने का जब इसे चाचू जान की आवाज़ सुनाई दी और यहाँ आके सकलान बेबस हो जाता था। वो अक्सर कहता था इसकी पहली मोहब्बत सरीना और आखिरी हाइका ये छोटी-सी बच्ची इसे जान से प्यारी थी। इसकी दस्तक मुसलसल बढ़ती जा रही थी। मजबूरन सकलैन को उठकर दरवाज़ा खोलना पड़ा। दरवाज़ा खोलते इसके साथ लिपट गए। चाचू जान, कल से मेरे साथ आपने हाइड एंड सेक भी नहीं खेली। मैं बोर हो गई थी, मुझे आपके साथ खेलना है। मुझे नहीं पता आपको बिस्तर मुझसे प्यारा क्यों हो गया है। वो इतनी मासूमियत से बोले कि सकलैन बेसाख्ता इसका गाल चूम बैठा। अरे मेरा बच्चा, चाचू हाजिर, बस कल से तबीयत ख़राब थी इसलिए नहीं आया बाहर। बस मुझे नहीं पता मैं आपसे नाराज़ हूँ। वो मुँह बना कर बोली। अरे मेरी जान, मेरे पास आपके मान जाने का सामान मौजूद है। वो उसे कल वाला बैग्स दिखाने लगा जो कल इसने मार्केट से लिया था, मगर अफ़सोस में दे ना सका। वाह चाचू जान, इतने प्यारे हैं, इतने से सारे खिलौने, कलर्स, अरे स्ट्रॉलर भी कितने प्यारे हैं, मैं मदरसे जाते हुए पहनूंगी। वो इतनी सारी चीज़ें देखकर बावली हो रही थी और सकलैन का मकसद पूरा हो गया था। वो हाइका के चेहरे पे खुशी देखना चाहता था और वो इसे मिल गई थी। सकलैन कब से साइना के आने का वेट कर रहा था और कुछ नहीं, वो देख तो सकता था अपनी बालकनी से। इसे ये पता अभी तक नहीं लगा था कि सरीना किस वक़्त और कहाँ जाती है। इसकी सरशारी के लिए यही बात काफ़ी थी कि इसने जीना शुरू कर दिया था। लेकिन बहुत हो गया था, अब सरीना को हर हाल में माज़ी के कुछ राज़ों से पर्दा हटाना होगा। इसे बताना होगा कि आखिर ऐसा कौन-सा शख़्स था जिसने इस तरह ज़लील और रुसवा करने की साज़िश रचाई। सकलन अब तो ये राज जान के ही रहेगा कि वो शख्स कौन था जिसने सरीना को तबाही के दाने पर ला खड़ा किया। सरीना चाहे कुछ भी बोले, लेकिन अब वो इससे दो टोक बात करके रहेगा। माना कि वो बात करना पसंद नहीं करती थी, वो नज़र उठाकर देखना गवारा नहीं करती थी, मगर वो नादान है ना, नहीं जानती थी कि दिल के मामलात क्या होते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि सकलैन किसी एक की बात नहीं बर्दाश्त कर सकता, किसी को मुँह लगाना पसंद नहीं करता, मगर सरीना के मामले में इतना बेबस क्यों है?
अक्सर दोस्त कहते हैं तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि किसी पर वीरान हवेली का टूटा हुआ फर्नीचर हो जो जंग आलूद हो चुका है, ना तो इस्तेमाल किया जा सकता है और ना फेंका जा सकता है। इसके दोस्त ने से पूछते हुए कहा कि इतना क्यों बदल गए। उस सकलन एक ही जवाब देता है कि मोहब्बत की थी ना, एक दिन अचानक तुझे खबर मिले कि तेरा बीमार सेहतयाब नहीं हो पाया। करीना वापस जब गाड़ी से उतरकर घर जाने लगी तो इसे गली के अकब में वो शख्स गाड़ी के पास खड़ा नजर आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे कह रहा हो कि कब तक भागती रहोगी। सरीना को इसकी नज़र से खौफ महसूस हुआ। वो जल्दी जल्दी भागने वाली कैफे से अंदर दाखिल हुई। जैसे ही अंदर दाखिल हुई सामने खड़े वजूद से जोर से टकराई। क्या मसला है, अंधी हो क्या? 4 साल अंदर रह के जिस वसारत से तो नहीं चली गई थी। मारिश इससे अचानक टकराव से भट पड़ी थी। जबकि सरीना हैरान थी कि यूनिवर्सिटी और स्कूल के तमाम दिनों में इसने नोटिस हासिल करने के लिए जिसकी ज़बान शहद उगलती थी, आज वहाँ से कड़वाहट उगल रही थी। सरीना तो 4 साल बाद देख रही थी इसको, जो 4 साल पहले इसे नयाब से दोस्ती करने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो सरीना को किसी से शेयर तक नहीं कर सकती थी और आज किस तरह इसे पेश आ रही थी। मेरी हिस्स पे बसीरत बिल्कुल ठीक काम कर रही है। मैं तो 4 साल अंदर गुजार कर भी वैसी हूँ, मगर लगता है आप बदल गई हैं। मैं वही सरीना हूँ जो आपकी एक प्रेजेंटेशन की खातिर 4 घंटे कैफ़े में ख्वार होती थी। मैं वही सरीना जो आपकी सुस्ती की वजह से ड्राइवर के चले जाने के बाद आपके साथ धोकर बसों में धक्के खाकर यूनिवर्सिटी पहुँचती थी। मैं अब भी वही हूँ जो आपके कम मार्क्स आने की वजह से कभी अपने ज़्यादा मार्क्स नहीं बताए थे, ताकि आपको शर्मिंदगी का एहसास ना हो। बात करते हुए गला रुंध गया, आंसू खुद ब खुद बहने लगे। मैं तो वही, मगर आपको एक रात ने बदल लिया। आपने तभी ना सोचा कि आपकी ही कज़न है जो आपके लिए कुछ भी कर सकती है, मगर आपके एहसास मर चुके हैं, आपका ज़मीर सो चुका है, इसलिए आप कुछ भी कहें मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप बदली हैं। मैं आज भी वही सरीना इफ्तिखार हूँ। इससे पहले मारविश कुछ रोती हुई अपने गेट से अंदर दाखिल हुई। मारविश गुस्से से पागल होने लगी थी। वो अभी घर ही पहुँचे थे, सब अंदर आ गए। वो भी अपना सामान लेकर जाने ही वाली थी, मगर कुदरत को इसकी औकात याद दिलाना ज़रूरी थी, जिसकी वो हर वक्त मनतनी रहती थी।